तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous video, we were discussing about the unit number 10, drug addiction. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter, that what is drug addiction. Drug addiction is a worldwide problem. It is causing the death of countless people. People are aware of the dangerous effects of drug addiction. In spite of it, they are falling prey to it rapidly. It is very tragic to see the youth of today taking drugs. Drug addiction affects us physically as well as mentally, leaving us unable to lead a normal life. Our total dependence on drug make it almost impossible for us to shake off our drug addiction. Drug addiction is caused both by genetic and environmental factors. When a person has genetic abnormalities and is dissatisfied with his life due to troubled domestic background and bad social conditions, he resorts to drugs. Rehabilitation centers play the most important role in controlling drug addiction. In these centers, drug addicts are strictly supervised. They are given complete medical support and guidance to shake off his habit. However, it is observed that families are reluctant to take their drug victims to rehabilitation center for fear of being insulted by their relatives and friends. They should seek an expert's counsel even after the drug addict is rehabilitated. They should try their best to help such patients shake off their habit permanently and become useful citizens. So we come to the conclusion that drug addiction is harmful for society and its individual in many ways. It is a big threat to society. We must take steps to remove this evil. In this chapter, it refers to the importance of rehabilitation center in treating drug addicts. It highlights the vital role that counseling plays in making people live a healthy life. So students, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise. First one is glossary. In glossary, we are discussing about the difficult words related to the chapter. First one is absolute. Absolute का मतलब होता है बेटा मुकम्मल या कंप्लीट और परफेक्ट इसका सिनोनिम है. इन्फ्लुएंस असर रखना. हैव इफेक्ट अपन. टैबू ममनुआ यानी कि फॉरबिडन. किसी भी माशरे में कुछ काम होते हैं जो कि मना होते हैं तो वो टैबू होते हैं. क्यूरेटिव. क्यूरेटिव का मतलब शिफा देने वाला, हीलिंग. रिहैबिलिटेशन बहाली, रिकवरी. रिलैप्स यानी कि पलट जाना, गो बैक टू, किसी चीज़ की तरफ वापस चले जाना. नाउ देयर इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉम्प्रीहेंशन. फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. हाँ जी, नशे की लत या उसकी आदत के क्या असरात होते हैं. सो द आंसर इज ड्रग एडिक्शन कॉजेज द बोथ मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस. इट लीव्स द person unable to think clearly and work actively. At least it causes the person's death. नशे की जो आदत है वो जहनी और जिस्मानी दोनों किस्म की बीमारियों का सबब बनती है. यह आदमी को वाज़ेह तौर पर सोचने और चुस्ती से काम करने से कासिर कर देती है, इनके रोक देती है. आखिरकार शख्स की मौत का सबब भी बन सकती है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन. हाँ जी, नशे की आदत के क्या असबाब हो सकते हैं या वजूहात क्या हो सकती हैं. ठीक है. सो द आंसर इज ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बोथ बाय जेनेटिक एंड environmental factors. When a person has genetic abnormalities and is dissatisfied with his life due to troubled domestic background and bad social conditions, he रिजोर्ट्स टू ड्रग्स. नशे की आदत का सबब जो है वो जीनियाती और माहौलियाती दोनों वामिल हैं.
जब एक शख्स को जिन्याती खराबियां होती हैं और वह तकलीफ दे घरेलू पस मंज़र और ख़राब समाजी हालात की वजह से अपनी ज़िंदगी से बेजार होता है तो वह मंशियात की तरफ रुजू करता है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत पर काबू पाने के लिए जो बहाली के मराकज़ होते हैं जहाँ पर नशे के आदी अफराद का इलाज किया जाता है वो क्या किरदार अदा करते हैं। सो द आंसर इज़ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल to control drug addiction. Drug addicts are strictly supervised in these centers. They are given complete medical support and guidance to shake off this habit. बहाली के मराकज़ नशे की आदत पर काबू पाने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। इन मराकज़ में नशा करने वालों की कड़ी निगरानी होती है। उन्हें उस आदत से पीछा छुड़ाने के लिए मुकम्मल तिब्बी मदद या रहनुमाई दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। What is the role of counseling in preventing drug addictions? हाँ जी, नशे की आदत को रोकने के लिए जो मुशावरत की जाती है या लोगों को मशवरे जो दिए जाते हैं नशे के आदी अफराद को, उसका क्या किरदार है या क्या मदद मिलती है उससे। सो द आंसर इज़ counseling plays very important role in preventing drug addiction. Counseling means professional advice. It is always needed even after the drug addict is rehabilitated for better motivation. It is through counseling that we can make a drug addict have a new set of habits. मुशावरत जो है वो नशे की लत को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मुशावरत का मतलब होता है पेशा वराना तजवीज़। इसकी बेहतर तरगीब के लिए हमेशा ज़रूरत होती है, हत्ता कि नशे के बहाल होने के बाद भी, यानी कि कोई शख्स अगर उसने नशा छोड़ दिया है लेकिन उसके बाद भी उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपनी उस आदत की तरफ दोबारा से पलट सकता है। अगर वो किसी भी शख्स के पास बैठे या उसको दोबारा से उसका दिल करे तो वो दोबारा उस आदत की तरफ वापस पलट सकता है। इसके लिए उसकी वक्तन फ़वक्तन क्या होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है। ये मुशावरत की बदौलत ही है कि हम एक नशेई को नई आदत का मालिक बना सकते हैं। हाँ जी, जब हम किसी भी नशे की आदि शख्स की जब काउंसलिंग की जाती है बेटा बार बार, तो वो अपनी पुरानी बुरी आदत को छोड़कर नई आदत है उनको अपना लेता है। क्वेश्चन नंबर 5। Why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation center? ख़ानदान के जो लोग होते हैं वो नशे की आदियों को बहाली के मराकज़ में ले जाने पर रज़ामंद क्यों नहीं होते। सो द आंसर इज़ they are reluctant to take the drug victims to rehabilitation center for fear of being insulted by their relatives and friends. वो इसलिए उनको नहीं लेकर जाते या राज़ी नहीं होते ले जाने पर कि उनको उनके रिश्तेदार और दोस्त जो हैं उनको डर होता है कि वो उनकी बेइज्जती करेंगे। यानी कि किसी भी माशरे का टैबू हो सकता है कि वहाँ पर जो अगर किसी को पता चल जाए कि किसी भी ख़ानदान का शख्स नशे का आदी है तो वो उसके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है, ये टैबू है फॉर एग्ज़ाम्पल माशरे का। तो लोग जो है इस डर से कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे या क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त रिश्तेदार हमसे मिलना जुलना ना छोड़ दें, इस वजह से वो क्या कहते हैं अपनी बेइज्जती के खौफ से लोगों जो अपने ख़ानदान के लोग हैं जो नशे की आदत में मुब्तला है उनको जल्दी से लेकर नहीं जाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। What are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of such patient? ऐसे मरीज़ों की मुकम्मल सेहतयाबी की यकीन दहानी करने के लिए ख़ानदानों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हाँ जी, जो कोई नशे का आदी शख्स है उसकी ख़ानदान उसकी किस तरीके से मदद कर सकता है, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके रिलेटेड। सो द आंसर इज़ दे शुड टेक सच पेशेंट्स टू अ रिहैबिलिटेशन सेंटर वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल. They should seek an expert's counsel even after the drug addict is rehabilitated. They should help such patients in every way shake off their habit permanently. उन्हें ऐसे मरीज़ों को ऐसे बहाली के मराकज़ में ले जाना चाहिए जहाँ पे उनका मुनासिब इलाज जो है वो दस्तयाब हो। उन्हें नशे के आदी शख्स की बहाली के बाद भी किसी माहिर शख्स का मशवरा हासिल करना चाहिए या उसकी काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए। उन्हें ऐसे मरीज़ों की मुस्तकिल तौर पर अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए भी हर तरीके से मदद करनी चाहिए। ये तकरीबन वैसा ही है पिछले क्वेश्चन जैसा कि हमने कहा कि काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो नई आदत को अपना सके, जो अच्छी आदत हैं और बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सके और वो दोबारा से उस चीज़ की तरफ वापस ना पलट कर जाए, इसलिए उसको बार बार काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। Now we move on to the vocabulary. What is vocabulary?
वोकैबलरी बेटा कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि उसके मज़ीद सिनोनिम्स वगैरह निकाल कर बैंक ऑफ वर्ड्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट द मीनिंग इन द मिडिल कॉलम, कंफर्म द मीनिंग बाय यूजिंग अ डिक्शनरी। हाँ जी, यहाँ पर हमने इनके मीनिंग्स लिखने हैं डिक्शनरी को देखते हुए। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बहुत लंबा अरसा, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग में इसका आएगा लंबा अरसा, और लॉन्ग टर्म इसको कह सकते हैं हम डिपेंडेंस का मतलब होता है इन्हिसारी, किसी चीज़ के ऊपर इन्हिसार हो जाना, मुनहसिर हो जाना। पेयर होता है फ्रेंड्स, फेलो या हम उम्र, हम इसको कह सकते हैं आउटकास्ट, बरादरी से बाहर या खारिज अज़ बरादरी। रैपिड तेज़, इसको हम क्विक भी कह सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर इलाज मुमकिन हो बेहतर तौर पर, ठीक है, बहाली का काम। क्रिटिकली, नुक्ता चीनी से या किसी के ऊपर आप अपना नुक्ता नज़र जो है उसको बारीक बीनी से देखें। नाउ वी मूव ऑन टू द ग्रामर। फर्स्ट वन इज़ relative pronoun. What is relative pronoun? A relative pronoun joins idea. It gives additional information about the subject or object. For example, who, which, that, whom, whose. हाँ जी, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में अगर हमने कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो कोई, तो उसके लिए हम ये सारे वर्ड्स लगा कर अपनी वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कैसे देंगे, हु का वर्ड लगाएंगे और फिर आगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देंगे। द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। Adjective clause. What is adjective clause? An adjective clause is a group of words which does the work of an adjective. हाँ जी, ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम करे वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्लॉज। इट यूजुअली बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, हुम, दैट, विच, हुज। ये असल में रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये तमाम वर्ड्स होते हैं, हु, हुम, दैट, विच, हुज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अम्ब्रेला which has broken handle is mine। हाँ जी, ये देखें अम्ब्रेला के बारे में या किसी भी उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसके साथ, which के वर्ड्स के साथ, और ये क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहला रहा है। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लॉज। फर्स्ट वन इज यूज हु, हुम, दैट, विच, हुज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन तमाम वर्ड्स को नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ करना है कि कहाँ कहाँ होगा। फर्स्ट वन इज दीज आर द पेंसिल्स डैश आई वॉन्ट टू बाय, तो यहाँ पर आएगा डैट, ठीक है, डैट आई वॉन्ट टू बाय, यहाँ पे मैं नंबरिंग दे रही हूँ। आई नो द वुमेन डैश चाइल्ड वॉज हर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आई नो द वुमेन हुज, हुज का वर्ड, ठीक है, किसी पर्सन है ना ये, तो इस वजह से यहाँ पे हुज आएगा। द ओल्ड लेडी डैश वी मेट इन द शॉप वॉज आमनाज ग्रैंड मदर, हाँ जी, यहाँ पर आएगा होम। दिस इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ पर विच आएगा, विच स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। शाजिया लाइक्स द कैंडीज हु हर फादर सॉरी विच हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पर भी विच का ही वर्ड आएगा, ठीक है। Now we move on to the next question B. Use the following relative pronoun in sentences. इन तमाम relative pronouns को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, sentences में, ठीक है। First one is who, यानी कि कौन या किसने। This is my brother who gave me 1000 rupees, ये वो मेरा भाई ही है जिसने मुझे 1000 रुपया दिया। Which, जो के या जिसने। This is the watch which I want to buy, ये वो घड़ी है जो मैं ख़रीदना चाहता था। डैट, जो के। आई लाइक द कार डैट माई ब्रदर बॉट फॉर मी, हाँ जी, यहाँ पर देखें मैं वो कार पसंद करता हूँ जो मेरे भाई ने मेरे लिए ख़रीदी है। होम, जिसे या जिसको। द मैन होम वी मेट ऑन द रोड वॉज माई टीचर, जिस शख्स पे से हम सड़क पर मिले थे वो मेरे उस्ताद थे। हुज, जिसका या जिसकी। सो द सेंटेंस इज डू यू नो द स्टूडेंट हुज बुक वाज स्टोलन, क्या आप उस तालिब इल्म को जानते हैं जिसकी किताब चोरी हो गई थी। यहाँ पर देखें हुज का वर्ड आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर हमने एडजेक्टिव क्लॉज लिखने हैं जो बेहतर हो इनके लिए।
वेयर इज़ द बुक, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच यू लेट मी यस्टरडे, कोई भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे, कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर इज़ द बुक विच यू लेट टू मी यस्टरडे, जो आपने मुझे दी थी कल, ठीक है। नेक्स्ट, एनी स्टूडेंट डैश विल बी पनिश्ड, एनी स्टूडेंट हु ब्रेक्स दिस रूल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हु ब्रेक दिस रूल, ठीक है। ऐसा जो भी स्टूडेंट रूल तोड़ेगा उसको सजा। दैट इज़ द गर्ल हुज कैट हैज़ कॉट अ रैट, हाँ जी, ये वो लड़की है जिसकी बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, ठीक है। नाउ वेयर इज़ द मैन whom we are looking for, जिसको हम देख रहे हैं वो आदमी कहाँ है। Now we move on to the next question about the writing skills. First one, summarize the lesson drug addiction with the help of following mind map, हाँ जी, इन चीज़ों को देखते हुए फैक्टर 1 फैक्टर 2 कॉजेज़ होने चाहिए, इफ़ेक्ट्स होने चाहिए और उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने एक समरी तैयार करनी है चैप्टर की। समरी देख लेते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, it is causing the death of countless people. People are aware of the dangerous effect of drug addiction. In spite of it, they are falling prey to it rapidly. It is very tragic to see the youth of today taking drugs. नशे की आदत जो है ये पूरी दुनिया का मसला है, बेशुमार लोगों की मौत का सबब बन रही है। लोग मंशियात की आदत के ख़तरनाक असरात से आगाह हैं, इसके बावजूद वो तेज़ी से उसका शिकार हो रहे हैं। It is very tragic to see the youth of today taking drugs. Drug addiction affects us physically as well as mentally, leaving us unable to lead our normal life. आज के नौजवान जो हैं वो नशा करते हुए उनको देखना बहुत अफसोसनाक है। नशे की आदत हमें जिस्मानी तौर पर उसी तरह जहनी तौर पर भी मुतासिर करती है, जिसमें ये हमें ज़िंदगियों के हमें नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से कासिर कर देती है। Drug addiction is caused both by genetic and environmental factors. When a person has genetic abnormalities and is dissatisfied with his life due to troubled domestic background and bad social conditions, he resorts to drugs. हमारा मंशियात पर मुकम्मल इन्हसार हमारे लिए इस बात को नामुमकिन कर देता है कि अपनी मंशियात की आदत से छुटकारा पा सकें। मंशियात की आदत जिन्याती और माहौलियाती दोनों अवामिल की वजह से होती है। जब एक शख्स में जिन्याती खराबियां होती हैं और वह तकलीफ दे घरेलू पस मंज़र और ख़राब माशी हालात की बिना पर बेजार होता है तो वो मंशियात की तरफ रुजू करता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ड्रग एडिक्शन। इन दिस सेंटर ड्रग एडिक्ट्स आर स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड, दे आर गिवन कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू शेक ऑफ दिस हैबिट। बहाली के मराकज़ मंशियात की आदत को रोकने के लिए अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। इन मराकज़ में नशेयों की सख्त निगरानी होती है, उन्हें पूरी तरीके से मुआवनत और रहनुमाई फ़राहम की जाती है ताकि वो उनसे छुटकारा हासिल कर सके। However, it is observed that families are reluctant to take their drug victim to rehabilitation center for fear of being insulted by their relatives and friends. बहरहाल देखा जा सकता है कि ख़ानदान के लोग अपने नशे की आदत अफराद जो हैं उन नशेयों को इस खौफ की वजह से कि उनके अजीज़ व अकारब उनकी बेइज्जती करेंगे, बहाली के मराकज़ में ले जाने पर रज़ामंद नहीं होते। उन्हें चाहिए they should seek an expert's counsel even after the drug addict is rehabilitated. They should try their best to help such patients shake off their habit permanently and become useful citizens. उन्हें चाहिए कि वो नशे की शख्स की बहाली के बाद भी किसी माहिर की मुशावरत हासिल करें। उन्हें ऐसे मरीज़ों की मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि वो मुस्तकिल तौर पर अपनी आदत से छुटकारा पा लें और फ़ाल शहरी बन जाएं। So we come to the conclusion that drug addiction is harmful for the society and its individual in many ways. So it is a very big threat to society. We must take steps to remove this evil. लिहाजा हम ये नतीजा निकालते हैं कि नशे की आदत कई लिहाज से माशरे और उसके अफराद के लिए नुकसानदेह है। ये माशरे के लिए बड़ा ख़तरा है। हमें इस बुराई को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। बेटा देखें, स्टार्ट में हमने उसके कॉजेज़ बयान कर दिए कि कौन कौन सी वजूहात है नशे की, ठीक है। उसके बाद हमने उनके इफ़ेक्ट बयान कर दिए कि क्या असरात होते हैं माशरे के ऊपर, और लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया या सोल्यूशन दे दिया कि उन्हें काउंसलिंग दें, उनका बेहतर तौर पर ख्याल रखें, उन्हें जो है
माशरे का बेहतरीन शहरी बनाने के लिए उनकी क्या करें, रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको दाखिल करवाएं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे का पूरा पैराग्राफ या समरी आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज में। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हमने चैप्टर के अंदर ग्रामर की है बेटा, सेंटेंसेस किए हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आपने होमवर्क के तौर पर इन क्वेश्चंस को याद करना है, अपनी जितनी भी डायरी है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बढ़ सके। बच्चों, ऑनलाइन आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।